dear friends, today we are going to talk about visual methods for screening and how VIA has to be interpreted. The VIA, visual inspection, VIA is visual inspection with acetic acid. VILI is visual inspection with Lugol's iodine. And you also have these days, tools to magnify. So the screening devices, so enhanced by screening devices called VIAM. Talking about these guidelines, normally we do VIA as per your Minister of Health and Family Welfare starts with 30 years. Every 5 years, you can see over here, frequency of screening is every 5 years, and do it till 65 years of age. So what do you do on a VIA? We normally, whenever this is a FOGSI guidelines, when you have a VIA positives, you can either screen and treat, or you can do colposcopy. For doing the VIA, you keep this thing ready, tray ready, and wash your hands and ask the patient to lie down and inspect her external genitalia, check for any discharge, then insert the speculum of appropriate size. What you look after is you look for the external os, you look for the columnar epithelium, squamous epithelium. There can be an ectropion, polyp, Nabothian cyst, condyloma, cervicitis. The procedure is simple. 5% acetic acid is to be kept for 1 minute, applied for 1 minute. Carefully look for few features which I'm going to come down. So apply for 1 minute and observation for another 1 minute. You look for the intensity of acetowhiteness. It is shiny white, cloudy white, or pale white, or dull white. Look for the speed of acetowhiteness. How soon does it appear? Borders and demarcations, whether it is distinct, diffused, flat, or raised margins. Location of the lesion, whether it is within the TZ arising from SCJ. And color uniformity, whether it is color or varied. And you have this VIA positives and negatives identified as VIA positives are distinct, well-defined, dense acetowhiteness abutting from SCJ. VIA negative is no acetowhiteness. Nabothian cyst can be sometimes seen. And metaplasia looks like thin, shiny, smooth, cloudy white, blending with rest of the tissues. So this is VIA results, VIA positives and VIA negative. Speed of appearance, color intensity, border demarcation, location, color uniformity. You look for this. So VI positives will appear rapidly and may last for 1 to 2 minutes. VI negative will appear late and quickly disappear, sometimes if it is required. Post VIA task, clean it with 0.5% chlorine solution, whatever you have used, and you can remove the sheet of the examination table, cover it with clean, and tell the results to the patient. Put it up in the register. These are VIA negatives. This is an ectropion. This is VIA negative, and this is VIA positives. You see, arising dense acetowhite arising from SCJ within transformation zone. Thank you very much. And whenever there is any screen positives, you tell her to go for colposcopy or do a treatment there and then. मैं डॉक्टर वीना आचार्य जो वेस्ट जोन की कोऑर्डिनेटर हूँ ऑन्कोलॉजी कमेटी की, वो आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगी। बच्चे दाने के मुंह का कैंसर एक प्रकार के वायरस के संक्रमण से होता है, जिसको कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ये यौन संबंध के द्वारा फैलता है। इस कैंसर की जानकारी होने के कारण बच्चे दाने के मुंह के कैंसर को रोकथाम की जा सकती है। हम आज यही एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में हमें पता है कि ये कैंसर एक प्रकार के वायरस से होता है। कैंसर सर्विक्स एक रोकी जाने वाली बीमारी है जो कि गर्भाशय का कैंसर होता है, लेकिन अभी तक इसे रोका नहीं गया है। भारत में आज भी 70% सर्वाइकल कैंसर के मरीज बहुत देर से आते हैं, जब उनके लक्षण आने लगते हैं और वो आखिरी स्टेज में होते हैं और काफी विकसित हो जाते हैं। इसलिए कैंसर रोकथाम करना हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है और इसका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रथम चरण पे HPV का टीका लगाया जा सकता है, जो हमारे देश में भी उपलब्ध है 2008 से। दूसरा चरण स्क्रीनिंग व जांच के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगाया जा सकता है और तीसरा चरण प्रारंभिक अवस्था में जो भी हमने कैंसर का पता लगाया है उसका इलाज जरूर किया जाए ताकि हम कैंसर की रोकथाम कर सकें। WHO जो कि दुनिया विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी 2030 तक ये एक मुहिम छेड़ा है
कि सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट कर दिया जाए और सबका केंद्र, सारी दुनिया का केंद्र इस तरफ डाइवर्ट कर दिया, इस तरफ लगा दिया गया और इस सब में हम सबकी भी भागीदारी बहुत जरूरी है। इसका क्या लक्ष्य है? ये 3 हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहला लक्ष्य, जैसे मैंने बताया आपको, 90% लड़कियों को 15 वर्ष की आयु में एचपीवी का टीका लगाना चाहिए जो कि अवेलेबल है, और 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच में महिलाओं की जांच करानी चाहिए, जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर होने के पहले ही पता लगा लें, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के साइन सिम्टम प्रारंभिक अवस्था में किसी प्रकार के नहीं होते, जबकि एचपीवी इन्फेक्शन होता है। तो इसका मुहिम कितना है कि 70% महिलाओं को इसमें कवर कर लेना चाहिए, और 90% महिलाएं जिनको कि हमने पता लगा लिया है कि उनमें कोई बदलाव हो गया है और कोई चेंजेस आ गए सर्वाइकल कैंसर के, तो उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। तब हम इस मुहिम को कर सकते हैं। आज मैं आपको सबको ये बताऊंगी कि जांच का क्या महत्व है, हम किस तरह से सर्वाइकल कैंसर की जांच के द्वारा सर्विक्स में, जो कि बच्चेदानी का मुंह है, उसमें होने वाली कोशिकाओं में बदलाव का बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में पता लगाया जा सकता है, जिसके कि इस अवस्था में इलाज करने से सर्वाइकल कैंसर होने से रोका जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट जो हम लोग कर सकते हैं, जिसको कि हम वाया टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये एसिटिक एसिड के साथ दृश्य निरीक्षण है, क्योंकि वाया मतलब विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड। भारत में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए सबसे सस्ती और उपयुक्त जांच है। ये अत्यधिक संवेदनशील है, मतलब सेंसिटिविटी इसकी काफी अच्छी है और टेस्ट भी बहुत सस्ता है। 35 वर्ष की आयु में अगर हम वाया टेस्ट करें तो करीब करीब हम सर्वाइकल कैंसर को 26% की कमी ला सकते हैं। और भारत सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ा मुहिम चला है। हर पीएचसी केंद्र में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए एकीकृत कार्यक्रम के रूप में वाया की सिफारिश की है, और वहां पर सभी नर्सेज और मेडिकल ऑफिसर्स इस जांच करने के लिए जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाया परीक्षण करते कैसे, क्या इसकी तरीके हैं। वाया परीक्षण के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, और हमारी नेशनल गाइडलाइंस के अनुसार हर महिला को, और हर महिला क्या, सभी महिलाएं जो भी 30 और 65 वर्ष की होती हैं, उनकी ये जांच कराना बहुत जरूरी है। और हर 5 साल में इस टेस्ट को रिपीट कर लेना चाहिए। इस कौन सा टेस्ट करना चाहिए? ये वाया टेस्ट मतलब विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड करा जाता है, और ये हर पीएचसी सेंटर पे करा लिया जाता है। और किन महिलाओं में थोड़ा सा हमें बाद में करना चाहिए? जिनमें कि माहवारी के दौरान हो, गर्भावस्था हो, बच्चे का जन्म हो या गर्भपात हुआ हो, तो 12 सप्ताह तक ये टेस्ट नहीं करें, पर 12 सप्ताह के बाद में उनको दोबारा सलाह दें कि वो आकर अपना टेस्ट जरूर करवा लें। अब वाया टेस्ट करने के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षण के पहले आने वाली महिलाओं की सारी जांच के बारे में हम उनको विस्तृत रूप से बताएंगे और लिखित रूप से उनकी सहमति भी प्राप्त कर लेंगे। महिलाओं को ये पूर्ण रूप से आश्वस्त करेंगे कि जांच में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है, कोई बेहोशी की जरूरत नहीं है, वो शांति से ये टेस्ट अपना करवा सकती हैं। और वाया टेस्ट करने के पहले हम उसकी ट्रे को तैयार कर लेंगे, और महिलाओं को जिस जगह पर जहां वो प्राइवेसी हो वहां देखेंगे, वहां उसको कर उसकी योनि में किसी प्रकार का स्त्राव तो नहीं है, और नॉर्मल सलाइन से साफ कर लेंगे। ये वाया की जांच करने के पहले एक सहमति पत्र है जो कि हर महिला से भरवा लेना चाहिए कि हमने उसको क्या टेस्ट करा है। अब मैं आपको बताऊंगी वाया टेस्ट करने के लिए जो हमको सामग्री चाहिए वो बहुत ही नॉर्मल है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। परीक्षण के लिए टेबल चाहिए, लाइट का सोर्स चाहिए, स्पेकुलम जो हम अपने रोज की गायनी ओपीडी में जो काम में लेते हैं, कुस्कोस बाइबल, स्पेकुलम, और फॉर्सेप्स, एसिटिक एसिड मापने के लिए सिरिंजेस होनी चाहिए, और सिलेंडर होना चाहिए, क्योंकि हम फ्रेशली प्रिपेयर 5% एसिटिक एसिड तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए? ग्लिसिक एसिड चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, कॉटन बॉल्स चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, और जांच करने के लिए दस्ताने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है 5% एसिटिक एसिड आप कैसे तैयार करें। इसके लिए बहुत ही सिंपल विधि है कि आप सबसे पहले अपने दस्ताने पहन लें, फिर 95 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर एक जार में डाल लें, और 5 मिलीलीटर ग्लिसिक एसिड
आप नाप लें एक सिरिंज के द्वारा। अब इन दोनों को आप मिला लें और जब मिलने के बाद ये तैयार हो जाए तो हमें इसको 5% एसिटिक एसिड कहते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी घोल हमने बनाया है वो 24 घंटे से ज्यादा इसको काम में न लें, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है और हमारे रिजल्ट भी कुछ गड़बड़ आ सकते हैं। अगर हमें स्वास्थ्य केंद्र पे अगर बहुत सारी महिलाएं नहीं हैं और हमें कम मात्रा में बनाना चाहिए, तो ये टेबल मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल है कि अगर हम 20 लीटर 5% एसिटिक एसिड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 1 सीसी हमें एसिटिक एसिड और 19 सीसी डिस्टिल वाटर लेना चाहिए। इस तरह से दे रखा है कि हम 80% बनाना चाहते हैं 80 मिलीलीटर, तो हमें 4 सीसी हमें ग्लिसिक एसिड चाहिए और 76 चाहिए। तो इस आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि आपको 20 चाहिए, 40, 60, 80 और 100 सीसी ग्लिसिक एसिड के लिए, वो जो कि 5% बनता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद रोज बनाएंगी और ये आप 24 घंटे से ज्यादा इसको काम में नहीं लेंगे। अब देखिएगा, इसमें उपकरण के लिए नाम पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हम सब कुछ लिखेंगे, एक हमें रजिस्टर चाहिए, परीक्षा तालिका बना के रखेंगे, लाइट सोर्स चाहिए, बायोवॉल स्पेकलम चाहिए, कॉटन स्वैब, दस्ताने और फ्रेशली प्रिपेयर 3 to 5% एसिटिक एसिड चाहिए। सबसे पहले टेस्ट करने की विधि क्या है? हम सबसे पहले उसके एक्सटर्नल जेनिटेरिया को अच्छी तरह निरीक्षण करेंगे। इस कुलम डालकर उसकी परीक्षा करेंगे कि गर्भाशय की ग्रीवा में किसी प्रकार का डिस्चार्ज अगर है तो उसको नॉर्मल सलाइन से साफ करेंगे। गर्भाशय की ग्रीवा पर ध्यान रखें कि 3 to 5% एसिटिक एसिड जो हमने तैयार किया है वो लगाएंगे और 1 मिनट तक रुकेंगे आप लगाने के बाद में, और चारों तरफ सर्विक्स की अच्छी तरह से लगा लें। जब 1 मिनट पूरा हो जाए घड़ी से, तब आप अच्छी तरह की रोशनी में उसको देखें। और अब ये देखें जो एसिटोवाइट लीजन जो आया है वो किस जगह है सर्विक्स के, और उसको रिकॉर्ड करके रखें। अब आपको ये पता चाहिए कि इससे क्या फर्क पड़ता है एसिटिक एसिड लगाने से, इसकी क्या सिद्धांत है। हम 5% जो एसिटिक एसिड लगाते हैं उसको हम जब विजुअल इंस्पेक्शन से देखते हैं तो वाया का परिणाम से आपको तुरंत उसमें कोई चेंज होता है वो दिखाई देने लग जाता है, और उसके लिए हमें कोई प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। आपकी स्वयं आप ही उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये दैट इज ऑब्जर्वेशन है कि परसेंट टू परसेंट कितनी अच्छी तरह से को आप जान जाएंगे कि कौन सा व्हाइट लीजन को आप एसिटो व्हाइट कहेंगे और कौन से को आप एसिटो नेगेटिव कहेंगे। और जो भी परिणाम आपके सामने आते हैं उसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक उसके रंग परिवर्तन देखें, क्योंकि ये परिणाम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्यों आते हैं बदलाव, इसके लिए ये सिद्धांत है कि जब भी कोई कैंसर के चेंज आने लगते हैं तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एसिटिक एसिड लगाने से डिहाइड्रेट हो जाती हैं, और जो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जमकर सफेद रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो जितना ज्यादा लीजन होगा, जितना ज्यादा ग्रेड के कैंसर की संभावना होगी, उतना ही उसमें चेंजेस आने लगेंगे। अब ये चीज आप ध्यानपूर्वक सुन लें, क्योंकि सावधानी पूर्वक आपको किन किन बातों का ध्यान करना पड़ेगा। जब आपने एसिटिक एसिड लगा लिया और 1 मिनट तक आप ध्यानपूर्वक उसको देख रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि उसकी स्पीड कितनी तेजी से, कितनी जल्दी वो एसिटो व्हाइट हो गया है। फिर ये आप देखिए कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो किस तरह की है, वो सफेद शाइनी व्हाइट है, उजाला है, घना सफेद है, क्लाउडी व्हाइट है, पीलापन युक्त है, पेल व्हाइट है, या मेला रंग का डल व्हाइट है। अब ये भी देखेंगे आप कि उसकी जो मार्जिन है वो शार्प है या डिफ्यूज मार्जिन है, कुछ मार्जिन रेज्ड हो गई है या कुछ चपटी है, फ्लैट मार्जिन है, और जो लाइन है वो रेगुलर है या इरेगुलर लाइन है, ये ना करना बहुत जरूरी है। अब जो स्थान है, लोकेशन, वो भी है। आप सर्विस को 4 भाग में डिवाइड कर लें। आप देखिए कि इंटीरियर के दोनों भागों में है या आधा भाग में, और पोस्टीरियर के में भी पूरे भाग में या आधा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप लीजन कहाँ पे है, उसके बॉर्डर कैसे हैं, और व्हाइट जो आया उसकी इंटेंसिटी कैसी है और कितनी जल्दी वह आया है, और कलर जो व्हाइट है वो यूनिफॉर्म है या उभरा हुआ है या फ्लैट है। अब जैसे आपने इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको इजीली बता सकते हैं, जैसे कि ये एरो लगा रखा है, इस एरो से ये जो है, ये सबसे पहले आप ये जान लीजिए एक्सटर्नल ऑस है, और जो ये रेड एरिया चारों तरफ, इसको हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, और इसको हम अपने लैंग्वेज में एक्टोपियन भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉलमनर एपिथेलियम आपके एक्टोसर्विक्स पे दिखाई देने लग गई है। और जहां पर ये कॉलमनर रेड और व्हाइट लाइन जो मिल रही है, ये पिंक है बिल्कुल, देखिए ये रेड है जो यहाँ मिल रही है, इसको
और इसको कोल्यूमनर जंक्शन कहते हैं। तो ये जगह थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि किस जगह ये व्हाइट लीजन आया है। अब आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने जांच करी उसका क्या परिणाम निकला है। देखिए पहली स्लाइड में आप देखेंगे ये बिल्कुल पिंक कलर की स्लाइड दिख रही है, इसमें कहीं कोई एसिड का इफेक्ट ही नहीं आया। इसका मतलब हम इसको रिपोर्ट करेंगे ये वायर नेगेटिव है, क्योंकि आप हर मरीज की जांच कर रहे हैं, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, पर हमें ये जांच सभी महिलाओं को 30 से 65 वर्ष की उम्र में करनी चाहिए। आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको रेडिश नजर आ रहा है, बट ये पिंक व्हाइट नहीं है। तो ये कोल्यूमनर एपिथेलियम है जो कि एक्टर सर्विक्स पे आ गई है, जो रेड कलर की दिखने लग गई है। अब आप ये देखिए कि जो वायर नेगेटिव है, ये देखिए कि यहाँ पे ये जो लाइन से देखिए कोल्यूमनर एपिथेलियम की लाइन है, और ये आपको स्क्वैमस एपिथेलियम है। दोनों के जंक्शन को हम स्क्वैमो कोल्यूमनर जंक्शन कहते हैं। ये एक छोटा सा पॉलिप है जो सर्विक्स की वजह से आने से हो गया है, और इसको अपन पॉलिप कहते हैं, जो कि सर्विक्स से दिखाई दे रहा है। और ये भी थोड़ा थोड़ा व्हाइट इस पे दिख रहा है, पर ये ड्यू टू द कोल्यूमनर एपिथेलियम है, हम इसको एसिटोनेगेटिव ही कहेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक छोटी सी व्हाइट पिंपल्स के रूप में दिखाई दे रहा है, ये इसको अपन कहते हैं कि नेपोथियन सिस्ट है। पर इसमें कोई भी ऐसा लीजन नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी कि हमें किसी तरह का डाउट हो। अब आप इस डायग्राम को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप आराम से बता सकते हैं कि जब आपने एसिड लगाया और उसके इमीडिएटली बाद आपने देखा है कि आपके एंटीरियर लिप पे एक बहुत बड़ा सा व्हाइट सा पेच दिखाई दे रहा है, जो कि इसको मैं कोल्यूमनर जंक्शन तक भी जा रहा है। तो पूरे एंटीरियर लिप पे ये आपको एसिटो व्हाइट लीजन दिखाई दे रहा है। आप दूसरे डायग्राम में अगर देखेंगे तो इसमें तो आपको इसका जो कलर है वो भी ओपेक व्हाइट हो गया है, काफी गहरा दिखाई दे रहा है। और ये जो है ये पूरा एंटीरियर लिप को कवर कर गया, पूरी पोस्टीरियर लिप पे भी ये कवर कर चुका है। इसको हम वाया पॉजिटिव लीजन कहेंगे। और आप इसमें देखिए तो बहुत ही बड़ा लीजन दिखाई दे रहा, पूरी सर्विस कवर हो चुकी है, एंटीरियरली पोस्टीरियरली सर्वाइकल कैनाल के अंदर जा रहा है, और सारी सीमाओं पे पूरी तरह से एसिटोवाइट। तो इन फोटो को देखकर आप खुद सोच सकते हैं कि 1 मिनट का टेस्ट है और कितनी जल्दी आपने ये बता दिया कि सर्विक्स की कोशिकाओं में कुछ बदलाव आ गया है, जिसकी वजह से ये कलर बदल गया और ये इतना ज्यादा फैल गया है कि इसको तुरंत आगे जांच करने की आवश्यकता है। अगर आप इसमें देखेंगे जिसमें कि आपने पहले देखा उससे भी कहीं गहरे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि वाया पॉजिटिव है और आगे इसमें कैंसर का भी पूरा पूरा डाउट लगता है, क्योंकि ये ग्रोथ का रूप में ले लिया है। आप देखिए ग्रोथ है जो कि ब्लीड कर रही है। एसिटोवाइट ओपेक कलर का है, बिल्कुल थिक ओपेक है। यहाँ पे भी आप देखिए थिक ओपेक व्हाइट लीजन हमें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल इरेगुलरली एसिटोवाइट लीजन है। तो ये वाया पॉजिटिव है। इन केसेस को अगर आप देखते हैं, आप अपने लेवल पे अगर आपको इलाज करना है तो बायोप्सी अगर आप कर सकते हैं तो बायोप्सी कर लीजिए प्राइमरी अवस्था में। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इसको आप आगे के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जरूर भेज दीजिए। आप इतनी स्क्रीनिंग कर लेंगे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारे लिए कि हम आज मरीजों का इलाज कर सकते हैं। तो ये सब जो परिवर्तन दिखाए गए कैंसर में हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से व्हाइट लीजन हो गए, ब्लीड कर रहे हैं, ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो इनको आप आराम से जांच करेंगे। अगर आपने नहीं लगाया एसिटिक एसिड तो पता ही नहीं लगेगा मरीज के अंदर बच्चेदानी में क्या चेंज आ रहे हैं और क्या उसके मुंह पे तकलीफ है। बाद में जब कैंसर बन जाता है तो उसको बहुत तरह की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, और समस्या भी बहुत हो जाती है, इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और जांच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वाया के माध्यम से हमें क्या क्या लाभ है? एक तो वाया परीक्षण हमें तुरंत रिजल्ट देता, बहुत आसान है, सस्ता है, और ये किसी भी तरह का मरीज को तकलीफ नहीं देता है। इसके लिए बहुत ही कम उपकरणों की जरूरत पड़ती है और परीक्षण की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हम नर्सिंग स्टाफ की बराबर क्लासेस लेते हैं, उन्हें बार बार समझाते हैं। मेरे पास मध्य प्रदेश से और भी जगह से कहीं से भी नर्सिस की जो ट्रेनिंग होती है वो फोटो खींच के भेज देती है। और आजकल तो वाया के साथ एक उपकरण और आने लगा है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि आप फोटो खींच के हमें भेज देंगे, हम बता देंगे कि मरीज को किसी तरह की कोई तकलीफ है। पैरामेडिकल स्टाफ भी इसको आराम से कर सकता है और इसके रिजल्ट भी तुरंत है। हमें पैप्स की तरह लैब में नहीं भेजना पड़ता है, न रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, टेस्ट काफी सेंसिटिव है। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब मिलकर आज जो मेरी आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है वो आपके लिए बड़ी उपयुक्त होगी, और आप सब मिलकर वाया टेस्ट करके मरीजों को जरूर फायदा देंगे। धन्यवाद।